The question number 6 of this worksheet is diagram. A light inextensible spring has particle A of mass 0.26 kg attached to one end and a particle B is of mass 0.54 kg attached to the other end. ये डायग्राम है इसके लिए. Particle A, this is a smooth pulley, this is a strain passing over the pulley, this particle is hanging, this particle is B and this is A. Masses are given, question की statement आप पढ़ें और A particle is held at rest over rough plane, plane rough है, angle alpha है horizontal के साथ and sin alpha is given 5/13. First we will mention all the possible forces on this. Tension towards pulley, tension towards pulley, weight of A particle is 0.26 g और इसको रिजॉल्व करेंगे. एक ये कंपोनेंट है इसका और दूसरा कंपोनेंट ये है, ये एंगल अल्फा है, this is also alpha. This component is 0.26 g sin alpha. This component is 0.26 g cos alpha. Reaction of the plane is R. And the weight of particle B is 0.54 g. The value of sin alpha is given. Sin alpha is 5/13. Particle A is held at rest. The coefficient of friction is also given, that is 0.2. Particle A is released and the particles start to move. Find the magnitude of acceleration and the tension in the string, first part. Now we will make the equations of particle A and B. For particle A, equation of motion will be the movement is upward of A, B comes down because it is heavier, so friction की direction downward to the plane होगी. Friction. Now for particle A, equation is T minus F mu r. ये F को हम mu r लिखते हैं माइनस वेट का कंपोनेंट 0.26 g sin alpha is equal to m में mass इसका 0.26 a 0.26 इसका mass है और m में 0.26 a बन जाएगा. यहाँ इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. म्यू की वैल्यू गिवन है t minus 0.2, this is mu
and R will be equal to the opposite force, वो वेट का कंपोनेंट है 0.26 जी cos अल्फा, तो हम R की वैल्यू यहाँ लिखते हैं 0.26 जी cos अल्फा माइनस 0.26 जी sin अल्फा इज इक्वल टू 0.26 ए। अब हम cos अल्फा और sin अल्फा की वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। ये देखें यहाँ पे साइन अल्फा हमें गिवन है, ये देखिए साइन अल्फा गिवन है, तो हम cos अल्फा की वैल्यू इधर से फाइंड कर लेते हैं। दिस इज अल्फा perpendicular over hypotenuse, third side must be 12 using Pythagoras theorem। तो यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू हमारे पास 12/13 आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यूज t माइनस 0.26 जी cos अल्फा की वैल्यू 12/13 है इस ट्राइंगल से, माइनस 0.26 जी sin अल्फा दैट इज 5/13 इज इक्वल टू एम ए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा t माइनस 0. इसको कैलकुलेट कर लें 0.48 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.26 ए। तो t फर्दर सिंप्लीफाई t माइनस 1.48 is equal to 0.26 a, and this is equation number 1. Say this is equation number 1. Now for particle b, उसके लिए इक्वेशन बन जाएगी 0.54 g minus t is equal to ma। तो g की वैल्यू 10 होती है, तो दिस बिकम्स 5.4 minus t is equal to ma। Say this is equation number 2. Now we will solve these two equations simultaneously. इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज t माइनस 1.48 इज इक्वल टू 0.26 a। नो एडिंग, जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस टी है, ये प्लस टी कैंसिल आउट हो जाते हैं। ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 3.92 is equal to 0.8 a। From here we can find a acceleration, that is 4.9 meter per second square. This is the value of a. Now we will put this value of a in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 में 2 में भी पुट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हम ये a की वैल्यू पुट करेंगे, वी विल गेट t माइनस 1.48 is equal to 0.26 a is 4.9। after simplifying we will get t is equal to 2.75 Newton। Now second part of this question is particle A reaches the pulley 0.4 second after starting to move,
Find the distance moved by each of the particles. Second part, t is 0.4 second. ऐसा distance हमें find करना है. Acceleration is 4.9 and initial speed is start से rest से start कर रहे हैं तो so initial speed will be 0. Now using this equation s is equal to ut plus half at square. Distance will be initial speed 0 plus 1 over 2. A is 4.9. T square. T is 0.4 square. इसको simplify करेंगे we will get 0.0392 मीटर. ये हमारा distance आ जाएगा covered by the particles. Now next is question number 7. पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं. पार्टिकल A of mass 1.26 g and particle B, दो पार्टिकल हैं, are attached to end of light in extensible string. String passes over a smooth pulley. Surface is horizontal, surface is rough. A is held at rest 0.4 meter from P. ये डायग्राम है इसकी. Rough horizontal surface, smooth pulley, particle A, and string passes over the pulley. The particle B is hanging. This distance is 0.48 meter. Now we will mention the forces acting on these two particles. Weight of particle A is 1.26 g. This is the weight 1.26 g. Mass is given 1.26 kg. तो इसका weight 1.26 g होगा. Reaction of the plane upward or tension towards pulley. Tension towards pulley. The weight of B is 0.9 g. The distance from A is held at rest at point, 0.4 meter, 0.48 meter from P, and B hangs vertically below P at height 0.4 meter above the floor. So this is the floor. This is floor, and this distance is 0.45 meter. 0.45 meter. Show that magnitude of the coefficient of friction between A and the table, that is also given. Coefficient of friction, that is mu is equal to 2 over 7.
A is released and particle starts to move. Uh, Show that the magnitude of the acceleration is 2.5 and find the tension in the string. Part first. पार्ट फर्स्ट के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे पार्टिकल ए और बी के लिए। पार्टिकल ए की इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, ये देखें, इसकी मूवमेंट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ए से अवे तो मूवमेंट नहीं हो सकती, तो इसकी मूवमेंट जो है बी पार्टिकल की तरफ होगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए ए पार्टिकल की इक्वेशन ये बनेगी यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन इज इन दिस साइड। दिस इज द फ्रिक्शन। इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल इज टी माइनस म्यू आर is equal to ma, m is this 1.26a, so mu is given, so this becomes t minus mu is 2 over 7, r is 1.26g, 1.26g is equal to 1.26a। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास t माइनस 3.6 आ जाएगा इज इक्वल टू 1.26a। Say this is equation number 1. Now for particle B, equation is 0.9 g minus t is equal to ma। 9 g की वैल्यू 10 है, 9 minus t is equal to m a। From here we can find the value of t in terms of a। t will be equal to 9 minus 0.9a। Putting this value of t in equation number 1, ये t की वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 0.9a माइनस 3.6 इज इक्वल टू 1.26a। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 5.4 इज इक्वल टू 2.16a। ये कैलकुलेटर कर लेना इसको। तो यहाँ से एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। Now putting the value of a in equation number 1, इक्वेशन 1 में ये a की वैल्यू पुट करेंगे तो टेंशन हमारे पास आ जाएगी t इज इक्वल टू 3.6 प्लस 1.26 a is 2.5। तो टेंशन जो है वो हमारे पास 6.75 न्यूटन आ जाएगी। दिस इज द आंसर। ये टेंशन भी फाइंड हो गई और एक्सेलरेशन भी फाइंड हो गया। पार्ट सेकंड ऑफ दिस क्वेश्चन इज find the speed with which B reaches the floor। हमें B की स्पीड फाइंड करनी है।
इनिशियल स्पीड इज 0 बिकॉज रेस्ट से ये मूवमेंट शुरू हुई है। इनिशियल स्पीड इज 0, एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड किया है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड एस सरफेस से फ्लोर से लेके बी तक का डिस्टेंस 0.45 मीटर है। एस इज 0.45 मीटर। वी विल फाइंड स्पीड, फाइनल स्पीड using this equation, v square minus u square is equal to as v square, u square 0 है तो v square is equal to a is 2.5 and s is 0.45. After calculating we will get v is equal to 1.5 meter per second. तो ये पार्ट सेकंड था। नाउ पार्ट थर्ड। Third part of this question is find the speed with which A reaches the pulley. अब हम डायग्राम पे देखें, बी पार्टिकल ने वो 0.5 मीटर कवर कर लिया, तो ये पार्टिकल ए भी यहाँ पे आ जाएगा। इसने भी 0.45 कवर किया है, ये 0.45 है। अब पार्टिकल ए जो है वो यहाँ पे है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो है दैट इज 0.03। रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो हमारे पास फॉर पार्टिकल ए 0.48, पार्टिकल ए ने 0.45 कवर कर लिया है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी 0.45 माइनस करेंगे तो ये 0.03 मीटर रह जाता है। तो अब हमारे पास पार्टिकल ए और पुली के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 0.03 है। इनिशियल स्पीड 1.5 मीटर है। इनिशियल स्पीड जो है, जो फाइनल स्पीड पार्टिकल बी की है वो अब इनिशियल स्पीड जो है वो पार्टिकल ए भी 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ तक पहुँचेगा। अब इसको हम इनिशियल स्पीड ले लेते हैं फॉर ए। डिस्टेंस हमारे पास ए और पुली के दरमियान 0.03 मीटर है। इनिशियल स्पीड जो बी पार्टिकल की फाइनल है वो अब पार्टिकल ए के लिए वो इनिशियल बन जाएगी 1.5 मीटर पर सेकंड। वी हमने फाइंड करना है, तो वी नो नीड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हम देखते हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अब देखें पार्टिकल ए जब यहाँ तक पहुँचेगा 0.45 कवर करके, तो उसका स्ट्रिंग के साथ उसका कोई अब रिलेशन नहीं होगा, तो वहाँ उसको फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन उसको रोकेगी, तो फ्रिक्शन की वजह से उसकी फाइनल स्पीड 0 हो जाती है। Only the force acting on this particle A know the friction, no other force। तो हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे 0 माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए।
तो यहाँ से एफ जो है वो म्यू आर होता है, तो माइनस म्यू आर इज इक्वल टू 1.26 है। म्यू की वैल्यू हमारे पास है 2/7, दिस बिकम्स -2/7। और आर हमारे पास जो है ऊपर आप देख सकते हैं आर 1.26 जी है, 1.26 जी इज इक्वल टू 1.26 ए। और यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ए इज इक्वल टू -2.857। ये हमारे पास डी एक्सेलेरेशन आया है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल ए जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा, फाइनल स्पीड उसकी ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास अब हम यहाँ लिखते हैं कि हमारे पास इस डाटा में ए भी आ गया है, -2.857 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। We will put these values in this equation: v square minus u square is equal to a s v square u square is v square, v हमने फाइंड करना है, u 1.5 उसका स्केयर आ जाएगा 2.25 इज इक्वल टू इंटू a जो है वो -2.857 है, डिस्टेंस इज 0.03। So after calculation, we will get v is equal to 1.44 meter per second. Now the next question is question number 8. This is the diagram of this question. Two particles A and B of masses 3 mkg, 2 mkg are attached to the end of light in extensible string. देखिए above the floor है, ये this is floor। पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम में this is smooth pulley, particle A, this is particle A lying on the inclined plane. This is string passing over the pulley. This particle is B. This particle is A. Masses are given. This particle is B. 3 mkg mass है A का और 2 mkg है B का, और this is floor. Distance from floor from B is 0.8. This is 0.8 meter. Now we will mention all the forces. Tension towards pulley on the B side, the tension is towards pulley, or weight 3 mkg of A, 3 mg बन जाएगा, वो मैथ दिया हुआ है 3 mg, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, 3 mg।
रिएक्शन ऑफ द प्लेन और वेट का कंपोनेंट, अदर कंपोनेंट, angle is theta, this is also theta, this component is 3m g sin theta, this component is 3m g cos theta. Now the string between A and the pulley is parallel to a line of greatest stroke. Initially A and B are at rest. Part A is given that the plane is smooth. Find the value of theta for which A remains at rest. At rest means acceleration is 0. तो हम यहाँ पे equation of motion देखते हैं for particle A. Part A में particle B के लिए equation जो है वो बनेगी 3mg sin theta minus t is equal to 0. So this becomes g की वैल्यू 10 है, तो यहाँ से t भी हम फाइंड कर सकते हैं. ये इसका वेट जो है वो 2mg है पार्टिकल बी का, तो 2mg इसका वेट है. बिकॉज एट रेस्ट तो हमारे पास t जो है 2mg आ जाएगा. t फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम b, फ्रॉम particle B, t minus 2mg is equal to 0. From here t is equal to 2. ये g की वैल्यू पुट करेंगे तो 20 m हमारे पास टेंशन आ जाएगी. Now putting the value of tension in this equation, 30m 30m sin theta minus 20m is equal to 0. mm से कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारे पास 30 sin theta जो है वो 20 आ जाता है. From here sin theta is equal to 2 over 3 and theta is equal to sin inverse 2 over 3. This will be equal to 41.8 degree. This is the value of theta. Now part second of this question is, it is given instead the plane is rough, theta is equal to 30 degree. अब प्लेन फॉर पार्ट बी प्लेन अब वो रफ है और थीटा की वैल्यू जो है 30 डिग्री है. हम दोबारा से इसकी डायग्राम बना लेते हैं, या यहीं हम देख लेते हैं कि नो थीटा इज 30 डिग्री फॉर पार्ट बी एंड द प्लेन इज रफ. तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी ऑन इंक्लाइंड प्लेन. वो रफ सरफेस की तरफ जो है वो पार्टिकल ए की वैसे वो डाउनवर्ड होगी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फॉर पार्ट सेकंड. तो यहाँ पे मैं पार्ट सेकंड के लिए ये मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ पे
टेंशन डाउनवर्ड होगी, और फॉर पार्टिकल बी वैल्यू ऑफ थीटा इज 30 डिग्री। तो नो हम इक्वेशन ऑफ बोथ पार्टिकल्स बनाते हैं। फॉर पार्टिकल बी इक्वेशन इज, यहाँ पे ये देखें एक्सेलेरेशन भी गिवन है। नो रफ सरफेस है, एंगल इज 30 डिग्री एंड द एक्सेलेरेशन ऑफ ए अप द प्लेन। एक्सेलेरेशन ए अप द प्लेन, इसका मतलब है कि मूवमेंट अपवर्ड हो रही है, तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड है। तो एक्सेलेरेशन भी हमें गिवन है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फॉर पार्टिकल बी इक्वेशन इज 2 mg minus t is equal to ma. m is 2m, a is 0.1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20m minus t is equal to 0.2m। तो फ्रॉम हेयर t हमारे पास आ जाएगा 19.8। ये 19.88 जो है वो हमारे पास t की वैल्यू आई है, 19.8 m, दिस इज t। नो फॉर पार्टिकल a इक्वेशन विल बी, पार्टिकल ए, वो डायग्राम में देखें, पार्टिकल ए की इक्वेशन जो है वो बनेगी t माइनस म्यू आर। हम f को म्यू आर लिख रहे हैं, t माइनस म्यू आर माइनस 3mg साइन 30 इज इक्वल टू एम ए। तो वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो शो करना है 1/10√3, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन शो करना है हमने इस फॉर्म में। t माइनस म्यू, म्यू हमने फाइंड करना है, और द वैल्यू ऑफ आर आप ऊपर देख रहे हैं। फॉर पार्टिकल ए पार्टिकल की तरफ आर जो है वो 3 mg cos थीटा के इक्वल होगा। 3 mg cos 30 लिखेंगे क्योंकि इन दिस पार्ट एंगल इज 30। 3m, आर की वैल्यू है 3mg cos 30 डिग्री माइनस 3mg sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 3m इंटू 0.1। अब हम t की वैल्यू ऊपर फाइंड कर चुके हैं, तो t की वैल्यू से पुट करेंगे 19.8 m माइनस म्यू, और इसको कैलकुलेट करेंगे 3, ये बन जाएगा 3 को g के साथ मल्टीप्लाई करेंगे विद 30, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, √3/2, साथ इसके m भी है, माइनस, अब ये कैलकुलेशन है 30m साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इज इक्वल टू 0.3m। तो नेक्स्ट इज 19.8m माइनस म्यू, ये सिंप्लीफाई होके 15m√3 रह जाता है, माइनस 15m इज इक्वल टू 0.3m। तो यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये म्यू वाली टर्म को सब्जेक्ट बना लेते हैं। म्यू 15
अंडर रूट 3m will be equal to 19.8m minus 15m minus 0.3m। तो यहाँ से हम म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यू विल बी इक्वल टू 4.5 m। ये कैलकुलेटर यूज कर लें। 4.5m ओवर 15 अंडर रूट 3m। ये m से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास म्यू आ जाएगा 4.5 ओवर 15 अंडर रूट 3। तो हमने वो जो गिवन है आंसर वो शो करना है, तो इसको हम करते हैं। ये 4.5 के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा 0.3 ओवर अंडर रूट 3। तो यहाँ पे हम इसको अंडर रूट 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने उस फॉर्म में आंसर देना है। तो इसको रेशनलाइज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेशनलाइज टू रिमूव अंडर रूट 3। इसको सर्ड बोलते हैं। टू रिमूव सर्ड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेशनलाइजिंग। ये हमने खुद किया है वो आंसर लाने के लिए। तो दिस बिकम म्यू इज इक्वल टू 0.3 अंडर रूट 3 ओवर 3। तो ये 0.3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0.1 आ जाएगा, दैट इज 1/10। तो 1/10 अंडर रूट 3 हमारा ये म्यू शो हो गया है। नो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस question is when B reaches, this is part C, जो अब करने लगे, this is part C of this question. When B reaches the floor, it comes to rest. B rest पे आ जाता है. Find the length of time after B reaches the floor for which A is moving up the plane. यहाँ डायग्राम की तरफ जाते हैं. When B reaches the floor, it comes to rest. Find the length of time after B reaches the floor for which A is moving up the plane. ये देखें, जब पार्टिकल बी जो है वो ग्राउंड पे आ गया है, फ्लोर पे आ गया, तो ये 0.8 मीटर इसने कवर किया, तो ये फ्लोर पे आ गया। और ये इसने पार्टिकल ए ने 0.8 कवर किया, तो वो यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे। तो अब ये पार्टिकल बी तो स्ट्रक हो गया, लेकिन ये पॉइंट ए जो है वो मूव करता रहेगा, लेकिन उस पर फ्रिक्शन उसकी मूवमेंट को अपोज करेगी, तो वो उसकी फाइनल स्पीड जो है वो 0 हो जाएगी। ये इसकी स्पीड, हाँ, 0 हो जाएगी। तो अब हम इतनी मोशन को कंसीडर करते हैं। ये देखें, मैं शो करता हूँ, ये इतनी मोशन को कंसीडर करना है ए पार्टिकल के लिए। ये हमने इसके लिए टाइम फाइंड करना है कि यहाँ पे जाके ये रुक जाएगा। तो
इनिशियल स्पीड हम पार्टिकल बी की तरफ से फाइंड करेंगे। इसकी फॉर पार्टिकल ए जो फाइनल स्पीड बी की होगी आफ्टर कवरिंग 0.8 मीटर, वो हम इनिशियल स्पीड ए के लिए लेंगे फॉर दिस मोशन, जो मैंने इंडिकेट किया है उस डायग्राम में। तो पार्टिकल बी की तरफ से हम फाइनल स्पीड फाइंड करते हैं, वही स्पीड ए की होगी फ्रॉम बी। पार्टिकल पार्टिकल बी की इनिशियल स्पीड जो है वो 0 है, एक्सेलरेशन जो है वो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इट इज गिवन डिस्टेंस कवर किया है पार्टिकल बी ने 0.8 मीटर। तो वी अप्लाई दिस इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as। तो पुटिंग द वैल्यू, इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड हमारे पास आ जाएगी 2 0.1 एंड s इज 0.8। तो ये हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 0.16, टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट 0.4 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड पार्टिकल बी की आई है आफ्टर कवरिंग 0.8 मीटर, आई मीन के फ्लोर पे आ जाएगा 0.8 मीटर कवर करके, वहाँ पे फाइनल स्पीड उसकी 0.4 होगी। तो अब ये हम पार्टिकल ए के लिए इनिशियल स्पीड इसको लेंगे, इतनी मोशन के लिए, इस मोशन के लिए इनिशियल स्पीड अब इसकी 0 हो जाएगी। इनिशियल स्पीड सॉरी, ये 0.4 हो जाएगी, जो भी फाइंड की है फाइनल स्पीड ऑफ बी। तो ये फॉर पार्टिकल ए इनिशियल स्पीड इज 0.4, फाइनल स्पीड ये फ्रिक्शन की वजह से रुक जाएगा, फाइनल स्पीड विल बी 0। एक्सेलरेशन हमें चाहिए, एक्सेलरेशन और टाइम हमने फाइंड करना है। नो वी नीड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए ये देखें, पार्टिकल ए जो है वो रफ सरफेस पे है, तो उसको उस पर अप्लाइड फोर्स कोई नहीं है, फ्रिक्शन अपोज करेगी उसको। यहाँ पे अपोजिट फोर्स लगेगी, फ्रिक्शन उसको अपोज करेगी। तो उसकी इक्वेशन एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम ये करते हैं कि 0 अप्लाइड फोर्स इज 0 माइनस एफ माइनस वेट का कंपोनेंट। ये देखें पार्टिकल ए का वेट का कंपोनेंट जो अलोंग द प्लेन एक्ट कर रहा है वो भी वहाँ पे यूज होगा। 0 माइनस एफ माइनस 3 mg साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 3 ma। इसको हम एफ को हम म्यू आर लिखते हैं, माइनस म्यू आर माइनस 3 mg साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 3 ma। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास है, पहले ही फाइंड कर लिया है हमने। तो माइनस √3/10 एंड आर इज 3 mg
cos 30 degree minus 3 mg sin 30 degree is equal to 3 ma। तो थ्रू आउट द इक्वेशन m हम लेफ्ट साइड से कॉमन लेके ये m जो है राइट साइड से वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो ऐसे ही हम इसको कैंसिल कर सकते हैं फ्रॉम बोथ साइड। ये कैंसिल आउट हो गया m, तो हमारे पास रह जाता है माइनस अंडर रूट 3/10 30 जी की वैल्यू पुट की है 30 cos 30 डिग्री माइनस 30 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 3a। तो यहाँ से 3 से डिवाइड कर दें दोनों साइड पे, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड वी गेट, और ये 10 30 से कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको केयरफुली आपने करना है। माइनस अंडर रूट 3 cos 30 माइनस 30 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू a। ये हमने माइनस अंडर रूट 3 cos 30 माइनस 30 sin 30 इज इक्वल टू 3a, dividing each side by 3, so we get minus under root 3 cos 30 degree minus 10 sin 30 degree is equal to a। So from here we get the value of a is minus 6.5 meters per second square। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। अब हम ये a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ये ऊपर ये देखें, ये डाटा लिखा हुआ है, यहाँ पे a भी हमारे पास आ गया है। तो दोबारा इसको लिखते हैं फॉर पार्टिकल a। हमने ये वो टाइम फाइंड करना है। a के लिए इनिशियल स्पीड है 0, इनिशियल स्पीड है 0.4 और फाइनल स्पीड इज 0, एक्सेलरेशन is negative 6.5 meter per second square, or no, we can find time using this equation v is equal to u plus at। तो फाइनल स्पीड 0, इनिशियल is 0.4 माइनस एक्सेलरेशन 0. माइनस 6.5 t, तो 0 ये 6.5 t इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू है जो 0.4/6.5, वी गेट दिस t इज इक्वल टू 0.0615 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर है।